Let us draw the structure of lung. This is trachea. Above the trachea is larynx. Larynx में एक छेद होता है जैसा आपके गुल्लक में होता है. That is called glottis. उसी ग्लोटिस को एपिग्लोटिस कवर करता है जब हम फूड को निगलते हैं. अब ट्रेकिया में आपने रिंग्स बनानी है. दीज आर द रिंग्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. Then draw the lungs. These are lungs. Below is present diaphragm. That is the muscular flap, and it is very important. Muscular diaphragm is the only characteristic of mammals. This is diaphragm. Then this trachea divide into two branches. These are called primary bronchus, and these also have the cartilaginous ring. They enter into their respective lung. अब आपको मैंने बताया यहाँ लेटरल साइड पे रिब्स प्रेजेंट हैं, तो वो रिब्स यहाँ आ रही हैं लंग्स में. और यहाँ आगे क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन. देन इन द लंग दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लंग. अब आपको लगता होगा कि ये लेफ्ट है, ये राइट है. ये मिरर इमेज होता है. जब आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो कॉपी को अपने आगे रख के खड़े हो, आपको पता लग जाएगा कि लेफ्ट लंग आपकी लेफ्ट साइड है और राइट लंग आपकी राइट साइड है. दिस लंग इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय दिस फिशर. दिस इज कॉल्ड oblique fissure. Oblique fissure. This lobe is called left superior lobe, and this is called left inferior lobe. Here I write 1, here I write 2. This is left superior. Left inferior lobe. Then before that, let us talk about the protective covering of the lungs. These are called pleura. Pleura word हम lungs के लिए use करते हैं. These are the protective covering of the lung. और हमेशा जो protective covering होती है उसमें कोई छेद नहीं होता, आपको ध्यान रखना है. तो बीच में कोई भी obstruction नहीं डालनी इसमें. देन इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विसरा. विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स. ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ड्रॉ कर रही हूं मैं. दीज आर द टू प्रोटेक्टिव कवरिंग. तो एक कवरिंग आप इसमें देख रहे हैं लंग्स के साथ है. दिस इंटरनल इट इज कॉल्ड VISCERAL visceral pleuron, PLEURON, and this is called parietal. Parietal pleuron, PLEURON, and in between these two there is present a cavity that is called pleural cavity. प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. क्योंकि जब लंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, हमारी बॉडी में जहाँ भी मूवमेंट होती है वहाँ लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है ताकि उसकी फ्रिक्शन को रोक सके, उसको घिसने से रोक सके. जैसे जॉइंट्स की बात करें, जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो ये लंग्स में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है. देन
this lung, that is the right lung, it is divided into 3 parts. इसके 3 parts होते हैं. This is called, ये जो मैंने डिवीजन दिखाई है इसको थर्ड नाम दे रही हूँ. This third is horizontal fissure. Horizontal fissure, F-I-S-S-U-R-E, horizontal fissure. And this one is same, oblique fissure. These two structure divide the right lung into 3 parts: right superior lobe, right middle lobe, right inferior lobe. अब ये वाला पार्ट देखें आप, ये जो पार्ट है यहाँ इस लंग की भी दोनों मेम्ब्रेन आ रही हैं, इस लंग की भी दोनों मेम्ब्रेन आ रही हैं. दिस इज कॉल्ड मेडिस्टिनम. दिस इज मेडिस्टिनम. और यहाँ पे एक नोच देख रहे हैं जो कि लेफ्ट लंग की साइड थोड़ी ज्यादा है. दिस इज कॉल्ड कार्डियक नोच. कार्डियक वर्ड का मतलब आपको पता लग ही चुका है, दैट इज कॉल्ड हार्ट. Here the heart is present. This is called cardiac notch. This is the structure of our respiratory organs which are called lungs. They are present in the rib cage. Rib cage is the airtight cavity which is surrounded on the lateral side by ribs, on the dorsal side by vertebral column, on the ventral side by windpipe is called trachea, having the incomplete ring of cartilage. Trachea divided into 2 branches. These are called primary bronchus, which enter into the respective lung. Their protective membrane. These are called pleura. Inner one is visceral pleuron. Outer is parietal pleuron. Between a space is present that is called pleural cavity containing a fluid called pleural fluid. Left lung is divided into 2 parts with the help of oblique fissure. These 2 parts are left superior lobe and left inferior lobe. Right lung is divided into 3 parts with the help of 2 parts. These are called horizontal fissure and oblique fissure. Right superior lobe, right middle lobe, right inferior lobe. And these lungs, they rest on a partition that is called diaphragm. And muscular diaphragm, it is the very important feature of mammals. It is only present in mammals. Then the space between 2 lungs where both the layers are continuation, this is called mediastinum, and there is present a notch toward the left lung. This is called cardiac notch. Here the heart is present. अब हम बात करते हैं कि जो लंग्स हैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, हमें इनहेलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, एक्सहेलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं. तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डायफ्राम. डायफ्राम के मसल जिनको बोलते हैं फ्रेनिक मसल. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए इस सरफेस को बोलेंगे लंग की अपेक्स बोलेंगे और नीचे वाले को बेस बोलेंगे. ये वाली सरफेसेस जो जहाँ रिब्स प्रेजेंट हैं इनको बोलेंगे कोस्टल स्पेस. और ये वाली सरफेस जहाँ मेडिस्टिनम प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड मेडिस्टिनम सरफेस. तो रिब्स के बीच में, ये सपोज रिब्स हैं, इनके बीच में मसल प्रेजेंट है, अंदर की साइड भी बाहर की साइड भी. 2 रिब्स के बीच में क्या बोला हमने? इंटरकोस्टल, क्योंकि रिब को हम क्या बोलते हैं? कोस्टल बोलते हैं. 2 रिब्स के बीच का स्पेस इंटरकोस्टल. अगर मसल बाहर की तरफ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अंदर की तरफ है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. डायफ्राम के मसल फ्रेनिक मसल. अब आपको पता है जो रिब्स हैं वो यहाँ ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच्ड हैं जिसको स्टर्नम बोलते हैं. तो जब रिब अंदर बाहर होंगी तो स्टर्नम भी अंदर बाहर होगा. अब आप एक लंबा सांस लें और अपनी रिब्स पे हाथ रखें, आपको लगेगा आपका हाथ ऊपर की तरफ उठ रहा है. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. फर्स्ट द मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट. डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे विच आर कॉल्ड फ्रेनिक मसल. अब ये डायफ्राम थोड़ा डोम शेप है, डायफ्राम थोड़ी नीचे की तरफ आएगा, फ्लैट हो जाएगा. जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा फ्लैट होगा तो ये जो थोरेक्सिक कैविटी है लेंथ में बढ़ जाएगी. लेंथ में बढ़ने को हम बोलेंगे इट इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर साइड.
अब रिब्स की बात करते हैं। इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, हम सांस अंदर ले रहे हैं, रिब्स मसल है अंदर की साइड भी बाहर की साइड भी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो बाहर वाले मसल काम कर रही हैं। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब्स कम अपवर्ड एंड आउटवर्ड अलोंग विद स्टर्नम। स्टर्नम भी थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, रिब्स भी थोड़ी बाहर की तरफ आएंगी। इन सब प्रोसेसेस से हमारी थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एयर का प्रेशर कम होगा, इसलिए जो हम सांस ले रहे हैं एयर अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमेन प्रेजेंट है। एब्डोमेन के मसल इसमें जो है वो पैसिव रोल प्ले करते हैं, डायफ्राम को नीचे आने देते हैं। तभी कहते हैं कि पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। पेट का ऊपर वाला पार्ट है फंडस, उसको खाली रखना चाहिए क्योंकि उसमें गैसेज होती हैं। क्यों नहीं खाना चाहिए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज रात को आप डिनर में भूख से ज़्यादा खाएं, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ होना चाहेगा, पेट उसको होने नहीं देगा, तो आप कहेंगे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दैट इज ड्यू टू एब्डोमिनल मसल, क्योंकि एब्डोमिनल मसल तो पैसिव रोल प्ले कर रहे थे, पर आपने उन्हें रोल प्ले करने का जो स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर दिया फूड से, तो अब वो रोल प्ले नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन, सांस बाहर कैसे निकालना है। एयर तो अभी आपने अंदर ले ली है, अब वो जो एयर अंदर गई है तो लंग्स के पास, लंग का इंटरनल स्ट्रक्चर भी करेंगे, उसमें ब्लड आ रहा है, ब्लड वेसल से, हार्ट से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपने जैसे ही एयर अंदर ली, लंग्स ने अपना काम शुरू कर दिया है, एयर से ऑक्सीजन को ब्लड में दे दिया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया है। तो जो अब आप एयर बाहर छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसके लिए जो मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे अब वो रिलैक्स करेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द डायफ्राम। मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स। जैसे डायफ्राम के मसल रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर डायफ्राम डोम शेप है तो लंग्स किस प्रोसेस में है। अगर डायफ्राम डोम शेप है तो लंग्स एक्सहेल कर रहे हैं, अगर डायफ्राम फ्लैट है तो इनहेल कर रहे हैं। जैसे डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, जो थोरैक्सिक कैविटी है वो लेंथ में छोटी हो जाएगी, एंटीरियर पोस्टीरियरली उसका जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा। अब हम रिब्स की बात करते हैं। रिब्स में पहले एक्सटर्नल मसल थे, एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो रिलैक्स कर जाएंगे। जैसे ही वो मसल रिलैक्स करेंगे, रिब्स कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, स्टर्नम आल्सो कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो थोरैक्सिक कैविटी विड्थ में बड़ी हुई थी वो विड्थ में छोटी हो जाएगी, तो इसको हम कौन सी साइड बोलेंगे, डोर्सो वेंट्रल साइड। डोर्सो वेंट्रल साइड में थोरैक्सिक कैविटी का साइज छोटा हो जाएगा, उसके अंदर वही एयर भरी हुई है जो आपने इंस्पिरेशन में ली थी। अब वॉल्यूम अंदर का कम हो गया है, एयर का प्रेशर बढ़ गया है, तो इसलिए एयर बाहर निकल आएगी। अब इस केस में हमने दो मसल्स छोड़ दिए हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। नॉर्मल जब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल इनका कोई रोल नहीं है। जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग लेते हैं, लंबा सांस छोड़ा, लंबा सांस लिया, या आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तब ये मसल रोल प्ले करेंगे, तब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायफ्राम को और ऊपर भेजेंगे, ताकि जो सांस है, कहते हैं मुश्किल से आ रहा है, बहुत मुश्किल से सांस बाहर निकल रहा है, तो वो डायफ्राम को और ऊपर भेजते हैं, तब एब्डोमिनल मसल का रोल आएगा। दे प्ले द एक्टिव रोल ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। सेकेंडली हम बात करें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये भी तभी रोल प्ले करेंगे, नॉर्मली ये इनएक्टिव ही रहते हैं। तो एब्डोमिनल मसल and internal intercostal muscle, they are also called muscle of expiration। इन सब कारण से थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्पेस कम हो गया है, प्रेशर ज़्यादा है एंड एयर कम आउटसाइड। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।